Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter and that is reproduction in animals. So what is the meaning of reproduction? Reproduction means when any animal, any living being produces the same kind of animals or organisms as they are. Okay, so this process is known as reproduction. तो अगर आपको याद होगा आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ये मीन्स ये क्या है, अगर हम देखें इफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, so this is also a key part where we decide whether a thing is living or non-living, because non-living things cannot produce the same kind as they are, the next generation. हमें जबकि है if we talk chair is non-living and we can find number of chairs, but ऐसा नहीं है एक चेयर दूसरी चेयर को रिप्रोड्यूस कर रही है. It is number of chairs, how are they increasing? Because we men are making it. But if we take the example of cat, dog या किसी एनिमल, काउ, बफेलो, कैमल, शीप, किसी एनिमल का भी लें तो उसमें हम कुछ फैसिलिटेट करते नहीं. ऑटोमेटिकली क्या होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस एंड दे प्रोड्यूस the next generation as they are themselves. So this is known as reproduction. Now today in this session I will discuss about mode of reproduction. What are the different modes of reproduction? So let us start this chapter and the first session based on this chapter. अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है? If we talk about our body, तो body में क्या है? There are different processes going on. Like the process of digestion, means the food that we eat, we digest the food. है या नहीं है? Means the food that we eat is consumed by our body, and this is a very long process. आपको मालूम है कि कैसे जाता है फूड? We keep it in our mouth, through esophagus it goes to the stomach, then through intestines, small intestine, large intestine, and then जो हमारा waste product बचता है that get excreted out. So this digestion is a long process, or if you know, I am not confirmed कि it takes about 24 to 48 hours for the food to get digested. नेक्स्ट हमने सर्कुलेशन का भी हमारा बॉडी प्रोसेस में मालूम है. सर्कुलेशन मीन्स क्या है? इट इज रिलेटेड टू ब्लड फ्लो. सर्कुलेशन मीन्स रिलेटेड टू ब्लड फ्लो, कि हाउ डज द ब्लड इज फ्लोइंग इन अवर बॉडी. हम ये जानते हैं कि हार्ट पंप्स द ब्लड एंड ब्लड गेट सर्कुलेटेड इन द बॉडी, और वो क्या है? डेट इज अ प्योर ब्लड. और इम्प्योर ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए अगेन एंटर्स इन द हार्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस. रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का हम उससे पहले हम क्या लेते हैं? रेस्पिरेशन से पहले वी डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मीन्स द फिजिकल थिंग, कि व्हेन वी टेक इन इनसाइड the air and we take out some of the air. अब ये जो इन और आउट का क्या प्रोसेस है, तब हम मूव करते हैं रेस्पिरेशन की तरफ. तो रेस्पिरेशन क्या हो गया कि when we are taking the air, the oxygen from it reacts with the food and provides us energy plus carbon dioxide. So that carbon dioxide that is produced because of respiration, we breathe it out. So this is also a very क्या कहें important function performed by our body. तो ये सब जो करते करते अब हमने ये भी पढ़ा है कि because ये सारे हम क्या कर रहे हैं, these are all factors of living beings. तो living beings में हमने एक और फैक्टर पढ़ा है कि they can reproduce, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं reproduction in plants.
और हमने उनमें डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा है. सो ये क्या आ गए? दीज आर ऑल फीचर्स that show that the particular organism can be counted in the living category. Now, what is the importance of reproduction? ये reproduction क्यों? तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो reproduction है, it ensures the continuation of similar kinds of individuals. जनरेशन बाय जनरेशन. मीन्स अगर हम किसी प्लांट का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है, प्लांट का एग्जाम्पल लें. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगो. तो मैंगो का क्या है? इट्स अ ट्री, उस पर मैंगो लगता है. अब ये मैंगो ट्री की एक लाइफ होगी. अब जो ये और इसका ऐसा और कोई ट्री नहीं बन रहा है. तो once this tree is dead, can we have a new tree? No. अगर हमने वैसा ट्री नहीं और डेवलप किया, मीन्स हमने उसको और नहीं, मीन्स और इसको अगर दूसरी वे में कहें कि अगर ऐसा ट्री और कोई रिप्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो हमारा ये जो मैंगो का जो अब हमें जो अभी मिल रहा है, वी कैन नॉट गेट दैट मैंगो. है या नहीं है? तो अगर हमें इसको जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन करना है, तो हमें क्या करना होगा? मैंगो के सीड्स जो हैं, वी हैव टू सो इन सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो टू बी अ ट्री. और ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा कि अगर इन केस कोई एक ट्री खराब हो रहा है, बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सप्लाई ऑफ मैंगो या कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मैंगो ट्री कैन बी मेंटेन. तो ये क्या आया? ये मैंगो ट्री के साथ नहीं, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स हमें ये करना पड़ेगा. तो जैसे हम प्लांट्स का कर रहे हैं, ऐसे ही गोज विद द, कहें हम ह्यूमंस या एनिमल्स. क्या होता है? आज हमारे पास एक पेट है, सपोज डॉग, ठीक है. सो अगर उस डॉग की डेथ हो जाती है, कहां से आएगा डॉग? नहीं होगा. लेकिन अगर उसने बेबीज करें, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमें लगातार हम डॉग्स को देख सकते हैं. तो ये सब जो नया जनरेशन जो जनरेट होता है, डेट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली दे आर ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं. और हमारे इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और एंड व्हाट इज द प्रोसेस, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ये वाले रिप्रोडक्शन होते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में प्रोसेस आ जाते हैं लाइक बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, fission, spore formation and vegetative propagation. Do you remember? आप ये सब पढ़ चुके हैं. बडिंग में क्या होता है? बडिंग किसमें होता है? ऐसे पोटैटो होता है, पोटैटो है यहाँ पे. इफ यू कीप फॉर सम टाइम यू सी सम व्हाइट थिंग इज कमिंग आउट. और ऐसे ही अगर ये पोटैटो इतना जो व्हाइट है, we sow in soil, we can get a new potato plant. So this mode of reproduction is known as budding. Fragmentation, कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसका क्या करा, एक इतना फ्रेगमेंट हमने सो कर दिया सॉइल में, तो दिस पार्ट कैन अगेन रीग्रो एज ए न्यू प्लांट. ऐसी ही फिशन, फिशन में क्या होता है,
जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है गेट्स डिवाइडेड फ्रॉम बिटवीन, मतलब 1 से 2, फिर ये पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक नया, अगेन इट गेट्स डिवाइडेड। सो 1 से हमें कितने मिल गए? 4। सो दिस इज नोन एज फिशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मीन्स अगर हम कहें तो वेरी टाइनी सीड्स, लेकिन वी डोंट नेम देम टू बी सीड्स, क्योंकि स्पोर्स एंड सीड्स का अगर हम बहुत ध्यान से देखें देयर इज सम डिफरेंस, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स, तो अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं। स्पोर्स को हम स्पोर्स में ही ले रहे हैं, और ये जो हैं स्पोर्स ये बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इफ दे एंटर इन द सॉइल दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और ये स्पोर का जैसे फर्न होते हैं, दे रिप्रोड्यूस विद दीज स्पोर्स। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि अगर हम कोई एक उसका पार्ट काट के वी सो इट इन द सॉइल, देन वी कैन से टू बी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इसके भी देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। तो हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब, और ये जो पढ़ रहे हैं ये अभी हम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स by which some of the plants या कहें most of the plants reproduce। कोई प्लांट किसी मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, the other plant reproduce with some other method। Now sexual reproduction, ये क्या है? इस रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। अभी आप इतना समझें, क्योंकि इसी चीज को वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि कैसे मेल गैमीट फॉर्म होते हैं, कैसे फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं, और जब वो फॉर्म होते हैं तो ये जो जाइगोट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइगोट, ये अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे प्लांट्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ऐसी ही प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। और एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्शन है डेट इज इन 2 वे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब ये जो एसेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम डिफरेंस। अब कुछ हम यंग वंस की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन का बेबी कहते हैं, कैट का वी से किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हैन का चिक, काऊ का काफ, एंड फ्रॉग का बेबी इज नोन बाय द नेम टेडपोल। तो सबके यंग वंस आर देयर। नाउ जो अब हमारा क्वेरी क्वेश्चन है, कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न? चिक्स एंड कैटरपिलर, एग्स है ना, हैन क्या देती है? एग देती है, उससे ये न्यू बॉर्न होते हैं। एंड दीज किटन्स, पपीज, इनमें कोई एग लेग नहीं होता है, दे आर बोर्न डायरेक्टली। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ? तो अगर हम पपी की बात करें, किटन की बात करें, चिक की बात करें और कैटरपिलर, तो हम देखते हैं कि जो हमारे डॉग के बेबी है, कैट के बेबी हैं, वो क्या हैं? दे लुक, देखते ही हमें पता चल जाता है ये डॉग या कैट का है। लेकिन कैटरपिलर की अगर बात करें तो कैटरपिलर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट बटरफ्लाई। वी सी सम डिफरेंस। व्हाई इज दिस डिफरेंस? ओके, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। So what did we learn today? Today we learn कैसे प्लांट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसी वे में हमने देखा एनिमल्स में भी ऑल्सो
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और थोड़ा सा हमने आज आइडिया लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, उसके साथ हमने क्या देखा, टू फॉर्म जाइगोट। इन्हीं चीजों को आगे के सेशंस में वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।